मेरा जब एडमिनिस्ट्रेटर वक़ाफ़ बोर्ड का जब चेयरमैन बना गया, उसके बाद मेरे गांव के लोगों की तरफ से थी कि आप यहाँ पे आ जाइए, हम आपका इस्तकबाल करेंगे। उसी सिलसिले में आज मैं अपने आबाई गांव में आया था, जिसके साथ हमारे इमाम जामिया मस्जिद किश्तवाड़ फ़ारूक किस्लू साहब थे और हमारे मस्जिद असरार के इमाम कारी मंजूर साहब थे, हाफिज़ दिलावर साहब थे, बहुत सारे साथी हमारे थे। उसी सिलसिले में आज यहाँ आए। मैंने कहा मैं अपने गांव से शुरुआत करता हूँ, जिनकी दुआ से मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ और एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ होने के नाते से मुझे अपने गांव से ही शुरुआत करनी थी। उसी के सिलसिले में आज हमारा यहाँ अपने आबाई गांव में आना था। जो भी हमारे मसाइल रहे, यहाँ तालीम को बढ़ावा देने के लिए एक डिमांड रही, यहाँ पे दरसगाहों को बढ़ाने के लिए एक डिमांड रही, यहाँ की मस्जिदों की जो कमी पेशा रही गई हैं, बिजली की, पानी की, सीमेंट की, वही यहाँ पे छोटी छोटी मस्जिदें हैं। किसी मस्जिदों में सीमेंट अभी नहीं हुआ, किसी का फर्श नहीं है, किसी का टीन नहीं है। वो सारी डिटेल इन्होंने दी है। आने वाले वक्त में उन बातों के ऊपर ज़हर गौर रख के उन चीज़ों के ऊपर मसले हल किए जाएंगे। आवाम से यही कहता हूँ कि ये रोज़ों का एक जो महीना आता है, ये साल में एक बार आता है। इसमें कसरत से नमाज पढ़ी जाती है, कुरान पढ़ा जाता है। इसमें नफ्स जहाद के बारे में जो हमें कुरान में लिखा गया है, आँख का रोज़ा रखना है, हाथ का रोज़ा रखना है, पेट का रोज़ा रखना है, नाक का रोज़ा रखना है, कान का रोज़ा रखना है। वही आज एक मौका मिलता है हमें, ख़ासकर इस महीने में इबादत करने का। मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को आपके ज़रिए से ये बताना चाहता हूँ कि ये जो रूरल एरियाज़ जो हैं, जो गाँव हैं, ख़ासकर इंदरवाल के, मड़वा बोड़वन दक्षिण के, पाडर के, नागसिनी के, यहाँ बिजली का खास ख्याल रखा जाए और मस्जिदों में पानी का इंतज़ाम किया जाए और यहाँ शहरी में बिजली का इंतज़ाम रखा जाए। मुझे उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। बस लेट में रोक बस। अस्सलाम वालेकुम। फिरदौस अहमद बवानी साहब जिंदाबाद। नारा रसूलुल्लाह, नारा रिसाला, या रसूलुल्लाह। هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة جہاں میں ہر ایک مقام پر، ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر میرے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر میرے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی کی عظمت تمہارے لیے ہے، جو ان کی عظمت تمہارے لیے ہے۔ نبی کے در پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں میں لکھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں۔ نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں میں
لکھ رہا ہوں میں پڑھ رہا ہوں میں دیکھتا ہوں نبی کے صدقے میں دیکھتا ہوں نبی کے صدقے گناہ میرے جڑے ہوئے ہیں میں دیکھتا ہوں نبی کے صدقے گناہ میرے جڑے ہوئے ہیں ہر ایک مقام پر ہر ایک جگہ پر میرے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں ہمارا ایک آپ یہ سمجھیے کہ مسلم وقف بورڈ نام ہی ہے، یہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے کہ جس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے دینی، معاشی، ثقافتی ہر قسم کے معاملات جو ہیں ان کا ازالہ، عوامی بہبود، مطلب اس اسلامی معاشرے کی بہبودیت کے لیے جو بھی کوئی کام ہوتا ہے وہ ان کا ہوتا ہے۔ اس پچھلے 70 سال سے پہلے کشتواڑ میں ہوتا تھا انجمن اسلامیہ، اور اس کے بعد پھر اوقاف اسلامیہ اس کا نام پڑا، اور اس کے بعد اسے یعنی کہ اوقاف ٹرسٹ میں تبدیل کیا گیا پورے جموں کشمیر میں، اور آج اس کا نام وقف بورڈ رکھا ہے، مسلم وقف بورڈ۔ تو یہ پہلا موقع ہے کہ ہمارے اس دور دراز پسماندہ علاقے کو اس کی نمائندگی ملی کہ ہماری اس وقت ڈسٹرکٹ کشتواڑ کے ایڈمنسٹریٹر جو ہے وقف بورڈ کے، وہ جناب بھوانی صاحب، ان کو میں مبارک دیتا ہوں۔ تو ہم یہ دعا کریں گے سب مل کر اللہ تعالیٰ ان کو اس میں کامیابی عطا کرے، اور ان سے اس وقف بورڈ کی جو ہے ترقی ہو، اور تمام معاملات جتنے ہیں وہ خوش اسلوبی سے یعنی وہ چلے پھلیں پھولے، وہ طے ہو۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت، یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس چھوٹے سے علاقہ سے اٹھ کر مشکلاتوں کے راستوں کو طے کرنے کے بعد کافی عرصے کے بعد وقف بورڈ کی ذمہ داری ضلع کشتواڑ میں جنہیں سونپی گئی ہے وہ اسی علاقے سے تعلق رکھنے والے محترم فردوس احمد بھوانی صاحب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، مطلب کہ تمام مخلوقات سے بہتر انسان کو بنایا، اور ہر انسان، ہر فرد و بشر کو ایک ذمہ داری سونپ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ وہ کوئی شخص اپنے گھر کا بڑا ہو، وہ اپنے گھر کی ذمہ داری کو لیے ہوئے ہے۔ کوئی شخص سکول کا پرنسپل ہو، سکول کا ٹیچر ہو، اس کے اپنے اوپر ذمہ داری عائد کی جاتی ہے۔ کوئی شخص مسجد کا امام ہو، امامت کے فرائض کو منصب پر بیٹھ کر اس کی اتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کے اوپر۔ اسی طریقے سے جب انسان اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کی تخلیق کرتا ہے، کہاں چیز بناؤں پہنے وتھا ہو، بے مقصد وہ چیز انسان بناتا نہیں ہے۔ اگر انسان نے اپنے ہاتھ سے بلب کا ایجاد کیا اور اس بلب کا جو مقصد ہے وہ روشنی دینا ہے، جو ہی وہ مقصد سے ہٹ کر روشنی دینا بند کر دے گا تو جو چیز ہمارے سروں کے اوپر ہوتی ہے یہی انسان اس کو اتار کر کوڑے دان میں پھینک دیتا ہے، جو ہی وہ اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے، یعنی کہ روشنی دینا بند کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم سب پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان۔
बहशत मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला ने हमें खैर उम्मह बनाया हुआ है कि बेहतरीन उम्मत। क्यों? क्योंकि हम हमेशा लोगों के नफ़ा के लिए सोचते हैं, नफ़ा के लिए काम करते हैं, आवाम की खैर ख्वाही के लिए काम करते हैं और आवाम को बुराई से रोकते हैं। और उसके बाद खाली वहीं तक नहीं रुकना है हमें, बल्कि एक इंसानी जिम्मेदारी भी है, बल्कि हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी भी आयद होती है कि किस तरीके से दीगर अक़वाम के लिए भी हम बेहतरी का सोचें, गैर मुस्लिमों के लिए भी बेहतरी का सोचें, उनके लिए भी वही चीज़ें हम पसंद करने वाले बन जाए इंसानी एतबार से जो हम अपने लिए पसंद करने वाले बन जाते हैं। और हम यही चाहते हैं कि जिस तरीके से हम इस दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो जाएं, उनके लिए भी हम यही चाहने वाले बन जाएं कि वो भी आखिरत में सुरखरू होने वाले किस तरीके से बन जाए, इसके लिए हमें काम करना है। जिम्मेदारी जो मोहतरम फिरदौस अहमद भवानी साहब पर दी गई है, हम तहे दिल से इनको मुबारकबादी पेश करते हैं। और ये यकीनी तौर पर आप सब की जो मोहब्बतें इनके साथ जुड़ी हुई हैं, हम सब की भी मोहब्बतें इनके साथ जुड़ी हुई हैं। हमें फ़ख्र है इन पर, क्योंकि इनकी दियानतदारी और इनकी शराफत इस बात की दलील है कि जो भी जिम्मेदारी इन पर दी जाएगी और जिस जिम्मेदारी को ज़ाती खुद लेंगे, दीनी एतबार से, कौमी एतबार से और मिली एतबार से मुफादात के लिए जो इनके हिस्से में मुफादात होंगे, वो ये सरअंजाम बहके अपनी यकीनी तौर पर ये सरअंजाम देंगे इंशाअल्लाह। इन्होंने पहले भी जो ही इनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद हुई थी, उसके बाद ने सबसे पहली बात की थी तालीम को लेकर कि हम इस इलाके में इस्लामिया फरीदिया स्कूल की एक ब्रांच खोलेंगे, एक इदारा खोलेंगे, क्योंकि तालीम वाहिद एक ऐसी चीज़ है जो कौमों को सरबुलंदी अता करती है, तारीकियों से निकालने के बाद रोशन मुस्तकबिल अता करती है। दो चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो कौम और मिल्लत को मजबूत करने वाली है, एक तो तालीम और दूसरी मईशत। जब तालीम हमारी मजबूत होगी तो तालीम हमारी इकनॉमिक्स और मईशत को भी माली एतबार से भी हम मजबूत हो जाएंगे। जब ये दो चीज़ें मजबूत हो जाएंगी, ज़ाहिरी तौर पर हमारा मुआशरा भी मजबूत होगा। और अपने मुआशरे के अंदर दीनी एतबार से जिस तरीके से भी हमें काम कर रहे हैं, बेहयाई को रोकने के लिए, हया को फ़रोग़ देना और आपस में एक दूसरे से माइत मोहब्बत सी रोज़न, ये चीज़ें दीन इस्लाम की तालीम है। और तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद वला तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। मोहतरम अमीर कारवां मौलवी फारूक साहब इमाम जामिया मस्जिद किश्तवाड़, फिरदौस भवानी साहब चेयरमैन वक़फ़ बोर्ड जम्मू कश्मीर यूनिट किश्तवाड़, कारी मंजूर अहमद साहब, हाफिज़ दरावर साहब, हाफिज़ राशिद साहब, मौलाना इकबाल साहब और तमाम हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि आज हमारे इमाम जामिया मस्जिद किश्तवाड़ और साथ में वक़फ़ बोर्ड ज़िला किश्तवाड़ के चेयरमैन फिरदौस भवानी साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, यह आपके और मेरे लिए खुशी का मकाम है। जब ही इन्होंने सदारत किश्तवाड़ के अंदर संभाली, अपने मरकज़ के अंदर इन्होंने ऐलान किया कि पूरे ज़िला किश्तवाड़ के अंदर इस्लामी स्कूल की ब्रांचें कायम करेंगे। आज अगर आपको और हमें ज़रूरत है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एजुकेशन की। मैं यहाँ से चेयरमैन साहब से गुजारिश करूँगा कि ये फिलफोर हमारे इलाक़ात की तरफ तवज्जो दें, हमारे इलाकों के अंदर इस्लामी स्कूल की ब्रांचें खोलें। तो मैं इमाम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ज़री रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल इल्मु नूरुन यनव्वरु बिहिल आलम। अज़ीज़ुल क़द्र फिरदौस अहमद भवानी साहब, उफ़ाज़ किराम, उलमाए किराम, हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये इलाका जिससे अल्लाह ताला ने एक इज़्ज़त बख्शी है, फिरदौस अहमद भवानी साहब की सूरत में
کہ पहली दफ़ा आपको यहाँ से एक रिप्रेजेंटेशन मिली है कि ज़िला किश्तवाड़ में यहाँ के एक मायानाज फर्जंद को वो कुर्सी मिली है जिसे हम फर्ज मनसबी समझते हैं। ये वो मनसब है जो अल्लाह ताला की ताईद से ही मिलता है। जहाँ तक आप हजरात का ताल्लुक़ है, आप इंतहाई मोहब्बत से खुलूस से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं ताकि हम अपनी इस अज़ीज़ का इस्तकबाल करें। अल्लाह ताला आपकी ये मोहब्बत, ये शफ़क़त, ये दुआ इनके हक़ में कबूल फरमाए। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि हमें ये मकाम मिलना चाहिए, वो मुझे मालूम है, लेकिन अल्लाह ने इनके मुक़द्दर में ये रखा था, ये खिदमत इनके मुक़द्दर में थी, तो ये अल्लाह ताला ने ये ताज इनको पहनाया अल्लाह ताला ने। लेकिन इसमें आप भी इनका दस्त ताउन करें, क्योंकि लोगों के दस्त ताउन के बगैर काम मुकम्मल नहीं होते। जो काम आपने करना है वो आपने करना है, जो इन्होंने करना है वो ये करेंगे। तो इसी तरह से ये किश्ती रवा और दावा होगी। लिहाजा मैं आप तमाम हजरात का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप कदरदां लोग हैं, बेकदर नहीं हैं, कदरदां हैं। आपने समझा कि अगर इस इलाके का फर्जंद जो है इस मनसब पर फाइज हुआ है तो हमें चाहिए कि मिलजुल कर हम इनका इस्तकबाल करें, इनके लिए दुआ करें और अल्लाह ताला से इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनसे खैर के काम करें। यहाँ की बरादरी चाहे उसमें गैर मुस्लिम हैं, चाहे उसमें मुसलमान हैं, इंशाअल्लाह इस सब के लिए काम करेंगे। इत्तिहाद बैनुल मज़ाहिब हम सब का मुश्तरका एक नारा है, क्योंकि जब तक न हम अपने हमसायों के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे तो हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही उम्मती नहीं। अहसन सलूक उनके साथ करना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हमसाया थे उन्होंने आपको सताया, लेकिन अल्लाह के रसूल ने किसी को नहीं सताया। अफू और माफ़ करना हमारा फ़र्ज़ अवलीन है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, कुरान मजीद पढ़ने वाले लोग हैं, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले लोग हैं। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि जो मनसब इनको मिला है, अल्लाह इस मनसब को चलाने के लिए अल्लाह ने इनको सलाहियत दी है, लेकिन मज़ीद सलाहियत से अल्लाह ताला इन्हें नवाजे और अल्लाह ताला इनके इस काम को, खैर के काम को अपने बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। और आपके लिए भी इस वक्त ये बाइस मसरत है, उसके बाद भी बाइस मसरत ही हूँ, शादमानी हूँ, खुशी का ज़रिया हूँ। अल्लाह ताला इन्हें तौफीक दे। हो तो आईना भी देखेंगे, तुम आ गए हो तो अब आईना भी देखेंगे, अभी अभी तो निगाहों में रोशनी हुई है, बजाए सीने की आंखों में दिल धड़कता है, बजाए सीने की आंखों में दिल धड़कता है, ये इंतज़ार के लम्हे अजीब होते हैं। मोहतरमुल मुकाम वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त फारूक अहमद साहब जो कि हमारे लेकिन कोशिश चाहन की अला कंडीशन दौर बस ने खास कर बड़ा अच्छा श्याम बात गाड़ के स्टेप थे इंशाल्लाह तमाम इलाका मश आज फुर्सत मो आज ना आज श्याम बात को